Good morning, students. Hope you will be healthy and all will be healthy in family too. Once again, welcome in history class. You know very well which chapter is going on. Third chapter, Nazism and the rise of Hitler. In the previous video, we have discussed about the youth in Nazi Germany. यानी which steps were taken by the Hitler for the youth people. Now today we will discuss about the Nazi cult of motherhood. यानी what were the values of the mother during the Hitler period. So firstly, radically different from men. यानी कि women were not equal to men that time. Struggled for equal rights as man would destroy society, because all the powers who is having mothers was not having any power, only man was having all the powers. यानी कि mothers they didn't get the equal rights also. mothers को क्या समझा जाता है कि they will look after only children. As a mother we consider only women that time and treated as second class citizen. यानी कि who considered in the first citizen only man or treated as second class citizens. So women considered as the second citizens. And awards and concessions to mothers who bore racially desirable children. यानी कि उन मदर्स को अवार्ड दिया जाता था. और कंसेशन का मतलब रिलैक्सेशन देना कुछ चीज में, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी. टू मदर्स हु बोर रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन. डिजायरेबल का मतलब दोज हु प्रोड्यूस द नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, प्योर ब्लडेड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, यानी कि जो प्योर ब्लडेड आर्यन जर्मन आर्यंस को जो प्रोड्यूस करेंगी, उन मदर्स के लिए क्या था वहां पर स्पेशल अवार्ड्स और कंसेशन. कंसेशन का मतलब उनको जो वहां पर डिलीवरी हुई तो उस हॉस्पिटल का पूरा खर्च कौन देगा, यानी कि हिटलर की पार्टी पूरा उसका खर्च उठाएगी, गवर्नमेंट पूरा उठाएगी. मॉल्स में, सिनेमा हॉल में, यानी कि इन मैनी प्लेसेस दे गोट द कंसेशन. रिगार्डिंग अवार्ड्स द वी विल डिस्कस इन द फोर्थ पॉइंट्स. एंड आफ्टर दैट दोज हु डिविएट फ्रॉम desired code of conduct were condemned publicly or severely punished. यानी कि those mothers produce the undesirable children, it means they that time they got the punishment. और which type of punishment they got that time, it means पूरे उनके बाल को मतलब गंजा कर दिया जाता था, उनको मतलब शेव्ड विद हेडेड, और उनको बाजार में घुमाया जाता था. ब्लैक एंड फेस, उनका पूरा फेस काला कर कर घुमाया जाता था. उनको प्लाकार्ड्स, एक तख्ती टाइप में उनके गले पे लटका दिया जाता था और उसके ऊपर लिख दिया जाता था कि मैंने अपनी कंट्री की, क्योंकि मैंने अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को प्रोड्यूस किया है तो इसलिए मैंने अपनी कंट्री का जो डैमेज प्योरिटी को क्या किया है, डैमेज किया है. कि दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट दे गोट दैट टाइम. नाउ ओनली वैल्यूएबल एज मदर, यानी कि वीमेंस की क्या इंपॉर्टेंस थी एज ए मदर ओनली. और टू बी गुड मदर्स, और किनको अच्छी मदर समझा जाता था. एंड रियल प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, जो किसको पालन पोषण कर रही है, किनको प्रोड्यूस कर रही है, ओनली प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, जो आर्यन चिल्ड्रन को प्रोड्यूस कर रही है, दे कंसिडर दैट टाइम गुड मदर्स. और सेकंड पॉइंट उनको क्या करना पड़ता था, मेंटेन प्योरिटी ऑफ रेस, और अपने साथ के साथ अपनी जो रेस है, जो यानी कि जो आर्यन चिल्ड्रन को पैदा करना है, जो अपनी जो उनका जाति थी उस चीज को कैसे मेंटेन करना अपनी कम्युनिटी के साथ. तो उनको इस चीज के लिए क्या स्टेप उठाना पड़ा उनको, distance for Jews, Poles and Russians. It means they cannot interact with the Jews, Poles and Russians. They can interact only the Nordic German Aryans people. Or those who didn't produce, यानी कि they didn't consider that time as a good mother. और fourth point, teach children Nazi values. यानी कि who will teach the Nazi values to the children that time? Only mothers will taught about that the Nazi values. कि why the Nazi party is superior. For special awards to mothers with many children. That time Hitler introduced many types of awards, यानी कि given to many types of awards. For example, bronze cross, यानी कि who will get the bronze medal? Those who produce 4 children, यानी कि जो मदर कितने बच्चों को पैदा करती थी, 4 children को, उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता था, ब्रॉन्ज क्रॉस. Those who produce 6 children, they will get the which award, silver. And those who produce the 8 children, they will get the gold cross. And those who produce many children, that time they got the honor crosses. यानी कि these types we have discussed about these which types of awarded got by the women that time. अगर 4 children produce कर दी तो bronze medal, 6 children पर उनको silver cross and 8 पर gold cross, and produce many children, यानी कि
more than 8, so they will go to the honor crosses. तो यानी कि what were the ideology we can think about the women that time, उनको किस रूप में लिया गया, only as a mothers, और mothers में भी क्या है, they will rear the German Aryan bloody children. So now we will discuss about the art of propaganda. We will discuss about the art of propaganda. यानी कि अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए नाजिज्म ने कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट किए थे. फर्स्ट वी विल सी 2 or 3 पॉइंट्स अमंग देम. नाजिज्म इन्फ्लुएंस माइंड्स ऑफ पीपल, यानी कि जो नाजी की जो आइडियोलॉजी था नाजिज्म का, उन्होंने लोगों के दिमाग पर क्या करते हैं, प्रभाव डाला. एंड वुड देयर इमोशंस, विच इमोशंस पर देयर हेट्रेड, जो उनके आइडियाज किससे अफेक्ट हुए, नाजिज्म के आइडिया से, आइडियोलॉजी से जो उसका अफेक्ट हुआ, उससे क्या हो, किससे घृणा करने लगे, हेट्रेड एंड एंगर टुवर्ड्स अनडिजायरेबल. अनडिजायरेबल का मतलब क्या, मेनली ज्यूज, पोलिस एंड वी कैन से दैट एंड अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, ज्यूज और मेनली पोलिस के लिए बड़ी और रशियन. तो यानी कि क्या है, नाजिज्म इन्फ्लुएंस माइंड्स ऑफ पीपल एंड वुड देयर इमोशंस विच इमोशंस पर देयर हेट्रेड एंड एंगर टुवर्ड्स अनडिजायरेबल. नाजी ने ऐसा दिलो दिमाग पर मतलब लोगों पे प्रभाव डाल दिया कि वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अब जो अनडिजायरेबल कम्युनिटी थी उससे क्या करने लगे, हेट एंड एंगर. सेकेंड पॉइंट, दे सजेस्टेड दैट ओनली नाजिज्म अलोन, और क्या उन्होंने सजेस्ट लोगों के दिलो दिमाग में बिठा दिया, ओनली दे सजेस्टेड दैट ओनली नाजिज alone can solve their crisis. Crisis का मतलब we can say that all the problems, who can solve here all the problems, only Nazis ideas, Nazis ideology can solve all the problems. They always use chilling language, not directly were using the लोगों को मारना है या गैस चैम्बर्स तक ले जाना, नहीं, directly they were not using that. For that पर chilling language हम कह सकते हैं कि frightening language, and use the words like special treatment, यानी कि मास किलिंग, जो जूस को जो मारा गया, जो मास किलिंग लार्ज स्केल पर जो जूस को मारा गया, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया है, स्पेशल ट्रीटमेंट. और स्पेशल ट्रीटमेंट के थ्रू क्या था, जूस को जो लार्ज स्केल पर मैंने उनको क्या वर्ड यूज किया, फाइनल सोल्यूशन, कि अब इनको फाइनल सोल्यूशन कर दिया, इनको लार्ज स्केल पर मारकर. पर डायरेक्टली ये नहीं कहा कि मास किलिंग, मास किलिंग की जगह क्या वर्ड यूज किया, स्पेशल ट्रीटमेंट, कि पूरे लोगों को मारना है जूस के लिए, उसके लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, फाइनल सोल्यूशन. डिसइंफेक्शन एरिया, ये वर्ड किसके लिए यूज किया है, द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड डिसइंफेक्शन एरिया. गैस चैम्बर के लिए क्या वर्ड यूज किया, डिसइंफेक्शन, यानी कि क्यों, क्योंकि विच टाइप ऑफ लैंग्वेज दे वर यूजिंग, चिलिंग लैंग्वेज. और नेक्स्ट इवोकेशंस, इवोकेशंस का मतलब टेकिंग टू द पीपल टू द गैस चैम्बर्स, लोगों को जो गैस चैम्बर्स तक ले जाया जाता था, उस प्रोसेस को क्या बोला गया है, इवोकेशन. तो यानी कि दे ऑलवेज यूज द chilling language, which type of special treatment, final solution, disinfections and evocations. I hope you understand. Special treatment for the Jews, यानी कि mass killing के लिए यूज हुआ, और उनका फाइनली सोल्यूशन करना मास किलिंग, स्पेशल ट्रीटमेंट देना किसके लिए वर्ड यूज हुआ, फाइनल सोल्यूशन जूस के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हेट्रेड किससे करते थे, जूस से. और डिसइंफेक्शन किसके लिए गया, द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड डिसइंफेक्शन एरिया, और गैस चैम्बर्स तक लोगों को ले जाना, वो प्रोसेस क्या कहलाता था, इवोकेशन. यानी कि दिस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यूज बाय दैट टाइम. और इस आइडियाज को और स्प्रेड करने में किसका मेन कंट्रीब्यूशन था, मीडिया पॉपुलराइज नाजी व्यूज, नाजी के व्यूज को और स्प्रेड करने में मीडिया का क्या रोल है, किसके थ्रू उसके आइडियाज को स्प्रेड किया, थ्रू इमेजेस, फिल्म्स. दैट वाज दैट टाइम मोस्ट फेमस फिल्म, द इटर्नल Jew. That was the most infamous film regarding to the Jews, the eternal Jews. रेडियो, पोस्टर, स्लोगन्स एटसेट्रा, इनके थ्रू नाजी की आइडियोलॉजी को और स्प्रेड किया गया मीडिया के थ्रू. और दे रेफर्ड, दे का मतलब क्या यहाँ पर, नाजीज, नाजी जो आइडियोलॉजी थे, हिटलर की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने रेफर्ड जूज है, जूस को किसके साथ कंपेयर करने, वो क्या संबोधित करके बोला गया, वो क्या है, रैट्स एंड पेस्ट, मतलब ये वर्ड यूज किया जूस के लिए. यूज ऑफ लैंग्वेज एंड मीडिया फॉर ए ग्रेटर इफेक्ट, यानी कि इस आइडियाज को, नाजी का जो प्रोपेगेंडा था, जो आइडियाज था, आइडियोलॉजी थी नाजिज्म, इसको स्प्रेड करने में मेन कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, मेनली लैंग्वेज एंड मीडिया. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. रिएक्शन ऑफ कॉमन पीपल टू नाजिज्म, यानी कि सम वर इन द फेवर और सम वर इन द अगेंस्ट, यानी कुछ जो नाजी की जो आइडियोलॉजी थी उसके फेवर में थे, पक्ष में थे, उसको लाइक करते थे,
कुछ लोग ऐसे थे जो सोसाइटी में वहीं पर जो दे डोंट लाइक द नाजीज आइडियोलॉजी। मैनी सा वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज। अब कई लोग क्या करने लगे वहां पर जो फेवर में थे नाजी आइडियोलॉजी, पूरे मतलब सोसाइटी को किस रूप में देखने लगे, पूरे वर्ल्ड को, कि जो नाजी ने जो बोल दिया वो दैट इज करेक्ट, वो सही है, वो दिखा रहे वो बिल्कुल सही है। एंड स्पोक इन नाजी लैंग्वेज, और नाजी जो पॉलिसीज अडॉप्ट करेगा उसी को वो फॉलो करेंगे। एंड दे बिलीव दैट नाजी कैन ओनली ब्रिंग प्रोस्पेरिटी, और दे वर थिंकिंग कि नाजी इज द ओनली पार्टी या नाजी इज द ओनली आइडियोलॉजी कैन bring prosperity, yeah, they can solve all the problems in the society. Jews were treated as suspicious neighbors, और Jews को किस रूप में देखने लगे थे, वो लगे suspicious neighbors, जो फेवर में थे उनको, यानी कि they were not in the favor of the undesirable. सेकंड था हमारा against, but few Germans were against Nazism but could not much to overpower them. कुछ लोग थे नाजी की आइडियाज को जो लाइक नहीं करते थे, पर वो उनको ओपनली अपोज भी नहीं कर पा रहे थे। तो दैट टाइम द कंडीशंस ऑफ जूस बिकेम्स रियली पैथेटिक। पैथेटिक मतलब दैट टाइम जूस कंडीशंस वर वेरी बैड, यानी दे वर नॉट इन द गुड कंडीशन, एंड दे डाइड मैनी टाइम्स इन देयर ड्रीम्स, यानी कि वो अपने ड्रीम्स में, यानी कि सपने लेते लेते क्या थे कि वो काफी बार मरे हैं। और वो अपने आप को किस रूप में पेश करने लगे, शार्लेट ने अपनी एक जो जूस के लोग जो ड्रीम्स देखते थे उनको अपने एक डायरी में लिखा, और बाद में इस डायरी को किसके रूप में उसने पब्लिश करवाया, बुक में, जो किस नाम से फेमस हुई, द थर्ड रेश ऑफ ड्रीम्स के नाम से फेमस हुई। इसमें ये बताया था कि धीरे धीरे कैसे जूस लोग नाजी के जो स्टीरियोटाइप्स थे उसमें बिलीव करने लगे थे, कैसे वो अपने ड्रीम में करते थे, हुक्ड नोज है उनके, ब्लैक हेयर और आईज हैं, और वो धीरे धीरे इन सपनों में खोने लगे, कि फिर धीरे धीरे उनको फाइनली ये जो ट्रैवल और जो इस टाइप के जो सपने देख रहे थे वो उनको काफी परेशान कर रहे थे, ट्रैवल में डाल रहे थे। लास्ट में उनको क्या लगता था कि उनको फाइनली दे हैव टेकन टू इन द गैस चैम्बर्स एंड फाइनली दे डाइड देयर, वहां पर ले जाकर उनको मार दिया जाता था। So that is our last topic. We have discussed ordinary people and the crime against humanity. We can see some chronology, some important dates happened in that chapter. Year 20th April 1889, birth of Hitler. 1918, Germany defeat in World War First. And 1923, political and economic crisis arises in Germany. And 1929 to 32, what happened here? Great economic depressions happened. 30th June 1933, डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का एंड होकर यहाँ पर क्या स्टैब्लिश होगा धीरे धीरे यहाँ पर मोनार्की सिस्टम, यानी कि डिक्टेटरशिप। एंड 30th सितंबर 1939, वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट किस इंसिडेंट से माना जाता है कि हिटलर ने कौन सी कंट्री के ऊपर अटैक किया, पोलैंड पर। उस इंसिडेंट से हम किसकी स्टार्टिंग मान सकते हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। Now we will discuss the conclusion of that chapter. Now we will revise the conclusion. यानी कि main points again we will revise. First World War. That chapter start from the First World War. Reason for Germany, we know very well. In the First World War, Germany defeated in 1918. Or who were the main powers? Central or Allies. यानी कि that war fought between mainly Central and Allies. But I will not explain all. I will take the only main points in conclusion. तो सेंट्रल एंड हाउ द जर्मनी डिफीटेड, इसमें जर्मनी किसकी वजह से हार गया था, व्हेन द यूएसए ज्वाइंड द वॉर टू अलाइज पावर इन 1917। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जर्मन डिफीट द वॉर। तो इससे क्या हुआ, जर्मनी जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी लॉस हुआ उसका सबका बर्डन किसके ऊपर डाल दिया, जर्मनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और क्योंकि जो अलाइज के जितने भी रिसोर्सेज वेस्ट हुए हैं, नष्ट हुए हैं, उन सब के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल माना गया, जर्मनी को। इसलिए जर्मनी को इनके साथ एक ट्रीटी करनी पड़ी। उस ट्रीटी को क्या नाम दिया गया, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। इसके अंदर क्या हुआ, जो जर्मनी के जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स थी, कोल, आयरन, इम्पोर्टेंट टेरिटरीज एंड मेन एरिया राइनलैंड, दे हैव टेकन बाय द अलाइज पावर। और जब ये हुआ तो इससे क्या हुआ, जर्मनी के अंदर जो केजर विलियम जो रूल कर रहे थे एम्परर, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद वहां पर क्या हो, ये चाह रहे थे कि इलेक्टेड पार्लियामेंट आए, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पर उसको वहां के डिप्टीज को चूज किया जाए। तो इसके लिए बनाई गई जर्मन पार्लियामेंट। तो इससे किसका जन्म है, बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, यानी कि मेट ए
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई गई और जर्मन पार्लियामेंट बनाएगी, इसको क्या नाम है, रेक्सटैग। इसके अंदर क्या होगा, डिप्टीज हैं वो इलेक्टेड होंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड ऑल आर हैविंग द राइट टू वोट, दे कास्ट देयर वोट इंक्लूडिंग वीमेन आल्सो। तो ये हुआ, बट दैट बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक इज नॉट वेलकम्ड बाय ऑल द पीपल। बर्थ वाइमर रिपब्लिक का मेन एम क्या था, वीमर रिपब्लिक का मेन एम क्या था, यहाँ पर क्या स्टैब्लिश करना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, यानी कि लोगों की चुनी हुई सरकार, जो हेरिडिटरी जो चला रहा था उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। पर बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक को इट इज नॉट वेलकम्ड बाय ऑल द पीपल, इसको सभी लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया। क्यों, ट्रीटी ऑफ वर्स, क्यों, सबसे पहले तो इसने किसको एक्सेप्ट किया था कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। अब कुछ लोगों को मानना था अगर हम ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को वीमर रिपब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती तो हो सकता था एंड तक आते आते जर्मनी जीत भी सकता था। पर जर्मनी की हार का एक मेन कारण और क्या था, फूड सप्लाई की भी शॉर्टेज होने लगी थी धीरे धीरे, और लास्ट में 1917 में अमेरिका ने भी ज्वाइन कर लिया था इसके अंदर। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक इज नॉट वेलकम बाय ऑल द पीपल, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस इट वाज ए वेरी हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी। पूरा जो भी वॉर में जो भी लॉस हुआ अलाइज पावर का, वो सारा किससे के ऊपर डाल दिया उसका बर्डन, जर्मनी के ऊपर। इनकी जर्मनी हैव टू पे ऑल द थिंग्स। तो इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जर्मनी के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस की वजह से क्या हुआ, जो उसके इंपोर्टेंट आयरन रिसोर्सेज थे, कोल रिसोर्सेज थे, जो इंपोर्टेंट एरिया थे, जो इंपोर्टेंट रिसोर्सेज थे, और ऊपर से जो टेरिटरीज थी दे हैव टेकन बाय द मेनली अलाइज पावर। अलाइज पावर ने उनका ले लिया, धीरे धीरे उनका क्या होगा, और ऊपर से एक अपमानजनक संधि भी थी इनके ऊपर। तो इससे लोगों की मतलब सोसाइटी टोटली चेंज हो गई यहाँ पर। तो इसीलिए वहां पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस अराइज हुए 1923 में। पॉलिटिकल तो क्या, वीमर जो केसर विलियम था उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और किसका जन्म हो गया यहाँ पे, वीमर रिपब्लिक। और साथ के साथ यहाँ पर क्या डेवलप हो गए, स्पार्टकिस्ट लीग डेवलप हो गई। और ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हम कह सकते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब जो भी कंपनसेशन के रूप में जो उनको देना पड़ा, किस रूप में पूर्ति करनी पड़ी, अपने गोल्ड के थ्रू वो कंपनसेशन की पूर्ति कर रहे थे। तो धीरे धीरे जो गोल्ड के रिसोर्सेज थे उनमें भी क्या आने लगी, डिप्लीशंस, कमी आने लगी। और लास्ट में तो क्या किया, फ्रांस ने उसका जो रूरल एरिया है कोल की भरपाई पूरी करने के लिए अपना वो एरिया भी अपने कब्जे में ले लिया। तो इससे वहां धीरे धीरे क्या आने लगे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस भी अराइज होने लगे धीरे धीरे। वहां पर लोगों को काफी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब वो उस पहले क्या था, जर्मनी को हम क्या बोलते थे, क्रेडिटर, और अब क्या बन गया, डेब्टर। यानी कि पहले लोगों को कर्ज उधार देता था, यूरोप की, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की थी, अब डेब्टर यानी कि कर्ज लेने वाले बन गए। क्योंकि इस जो भी वॉर के अंदर जो भी रिसोर्सेज यूज हुए वो क्या थे, इसको लोन लेकर लड़ा गया युद्ध। तो यानी कि क्रेडिटर से क्या बन गया, डेब्टर। तो काफी लॉस हुआ इससे। इससे साथ के साथ वहां पर क्या अराइज हुआ, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन अराइज इन 1929 टू 1933। क्यों, फ्रांस ने उनका रूरल एरिया ले लिया, इससे उनको काफी लॉस हुआ, है ना। तो इससे वहां की जो करेंसी है वो उन्होंने क्या करना चाहिए, उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने करेंसी को केयरलेसली, रिकलेसली मतलब उसको प्रिंट करना शुरू किया। जब प्रिंट करने से जो प्राइसेस थे जो सामान का, वो हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ दिया गया। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब जो किसी प्राइस हाई हो जाना किसी चीज के, कमोडिटीज के। यानी कि अगर आपको एक रोटी के ब्रेड भी लाना है, रोटी का ब्रेड का पैकेट लाना है, तो इसका मतलब आपको एक पूरा ट्रक भरकर लाना ले जाना होगा करेंसी का। तो यानी कि जर्मनी का जो वैल्यू था मनी का, वो पाउंड का क्या होगा, मार्क्स फेल डाउन, धीरे धीरे वो खत्म होता चला गया। इससे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ वहां पर। पेपर करेंसी, क्योंकि पूरा एरिया धीरे धीरे गोल्ड, सारे रिसोर्सेज उनके धीरे धीरे खत्म होने लगे। इस सिचुएशन से उठाने के लिए किसने हेल्प की, अमेरिका के ड्यूइस प्लान ने। ड्यूइस प्लान बेल्ड आउट टू जर्मनी, यानी कि अमेरिका ने ड्यूइस प्लान अडोप्ट किया कि जर्मनी को कैसे सिचुएशन से इफेक्ट किया जाए। पर इसी के साथ साथ वहां पर क्या हुआ, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में वहां का जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, जो वर्ल्ड का जो हम बोलते हैं बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें काफी गिरावट आई। उससे गिरावट आने से क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड की, नॉट ओनली दैट, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक क्राइसिस अफेक्ट हुए उससे। और सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट हुआ इससे, इकोनॉमिक क्राइसिस से, जर्मनी को। क्योंकि अमेरिका अब इसकी हेल्प करने की वजह क्या हो गया, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने लगे। तो जर्मनी की हेल्प कर, इसी के लिए मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निपटा जाए, इसीलिए
हिटलर ने अपने एक इकोनॉमिस्ट को भी अपॉइंट किया था, जालमस सल्जेट को, कि कैसे उसके लिए उन्होंने भी प्रोग्राम बताया कि क्या क्या पॉलिसी हम अडोप्ट करें उसके अकॉर्डिंग हो, मतलब बाद में आएंगे पॉइंट हम ऐड करेंगे। बिकॉज ऑफ दीज क्राइसिस, इन्हीं सभी क्राइसिस की वजह से, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, ग्रेट इकोनॉमी डेवलप, कौन राइज हुआ यहाँ पर? हिटलर। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरा बर्डन किसके ऊपर डाल दिया? जर्मनी। बर्डन तो डाल दिया, पर साथ के साथ उसको क्या और कर दिया? ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, यानी कि अपमानजनक संधि भी किसके ऊपर डाल दी? जर्मनी के ऊपर। पूरा वर्ल्ड वॉर का बर्डन जर्मनी पर ला दिया। एक इससे हार्श और ह्यूमिलेटिंग कोई ट्रीटी नहीं हो सकती थी। अब हिटलर आया तो हिटलर ने क्या किया यहाँ पर? फॉर्म द नाजी पार्टी। बेटा आई एम टेलिंग ओनली इंपोर्टेंट पॉइंट्स, आई एम नॉट टेलिंग ऑल द पॉइंट्स अगेन। रिकवर दिस सिचुएशन। अब हिटलर ने क्या कहा कि आई विल फुलफिल ऑल द पीपल्स ड्रीम। कैसे? उसने कहा कि आई वांट टू बिकम, मैं अपने कंट्री को क्या बनाता है कि स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहता हूँ, और जितने भी जो ये फॉरेन जो इन्फ्लुएंसेस हैं, वीड आउट हैं, जो फॉरेन है, इन सबको कंट्री से बाहर निकालना है। जो जिन्होंने भी एलाइज ने हमारे ऊपर जो हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी की है, इनको सबसे पहले तो यहाँ अपनी कंट्री से निकाल फेंकना है, बाहर फेंकना है। तो और अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए, लोगों को रोजगार के लिए प्रॉमिस किया कि यस आई विल प्रोवाइड टू द यूथ को कैसे एजुकेशन दी जाए। फॉर्म नाजी पार्टी, इसीलिए वहां पर आपने देखा नाजी पार्टी 1930 तक नहीं फेमस थी, पर जैसे ही ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद नाजी पार्टी बिकेम वेरी फेमस। एक नाजिज्म जो व्यूज था वो क्या बन गया? मास मूवमेंट बन गया। मास मूवमेंट बनने से क्या हो गया? 1932 में आप देखो कि सबसे ज्यादा मतलब वहां की हाईएस्ट पार्टी बनकर जो 37% वोट से जीत के आई, 37% वोट मिले। तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी, अब क्या हुआ? द डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी, यानी कि वहां पर डेमोक्रेसी को तो हटा दिया, और डेमोक्रेसी को हटाकर क्या स्टैब्लिश कर दी वहां पर? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप कौन से एक्ट के थ्रू हुई थी वो हमने डिस्कस किया था, 3 मार्च 1933 इनेबलिंग एक्ट। ड्यू टू इनेबलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ? हिटलर will not take permission या will not consult with the जर्मन पार्लियामेंट, ही विल टेक द डिसीजन योरसेल्फ, अपने हिसाब से करना। और वहां के लोगों को जो सिविल लिबर्टीज थे, सिविल राइट्स थे, दे हैव टू सस्पेंड इट, यानी कि लोग दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ऑल थिंग्स टोटली बैन। किस कौन सी पार्टी को ओनली परमिशन दी गई? ओनली नाजी पार्टी आर फ्री, और अदर पॉलिटिकल पार्टीज पर क्या कर दिया गया? बैन लगा दिया गया। हिटलर यहीं पर हिडनबर्ग ने हिटलर को क्या दिया? एज ए चांसलरशिप का मौका दिया 3 मार्च 1933 को। तो वो कैबिनेट मिनिस्टर का क्या था? हाईएस्ट पोजीशन था, हाईएस्ट पोस्ट थी इसके लिए। द रिकंस्ट्रक्शन, अब हिटलर ने यहाँ पे लोगों से प्रॉमिस किया था ना कि आई वांट टू बिकम ए स्ट्रॉन्ग नेशन, तो क्या रिकंस्ट्रक्शन किया? रीऑक्युपाइड लैंड, जो उनका रूर एरिया था, जो रिप्रेमेंट की वजह से गोल्ड के जो काफी एरिया चले गए थे, वो वापस लिया गया। सबसे पहले रीऑक्युपाइड राइनलैंड एरिया ले लिया गया, जो उनका इंपोर्टेंट रिसोर्सेज के लिए जाना जाता था प्लेस। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रियन जर्मनी 1938 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेटेड किया, एक किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया? 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर के इस स्लोगन्स के साथ। इसी के साथ साथ सितंबर 1939 में इन्वेडेड पोलैंड, मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बता रही हूँ। अब हिटलर ने पोलैंड के ऊपर क्यों अटैक किया? फॉर द रिसोर्सेज, कि अब कंट्री के रिसोर्सेज को कैसे और बढ़ाया जाए, इसीलिए हिटलर ने किसके ऊपर अटैक कर दिया? 1939। यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग मानी जाती है, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड ने क्या किया? हिटलर के ऊपर यानी कि जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया। और बाद में इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कौन और ज्वाइन करते हैं? यूएसए एंड यूएसएसआर। और सबसे बड़ी बात क्या थी? यूएसएसआर के ऊपर अटैक नहीं किया। यूएसएसआर शामिल होने से क्या हुआ? क्योंकि उसे हिटलर ने ये संधि की थी कि हम 5 ईयर्स तक आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगे या आप हमारे ऊपर नहीं करेंगे। अब ये क्या हुआ? हिटलर को यानी कि जर्मनी को बीच में, इससे रशिया कर रहा है और वेस्ट से कौन अटैक कर रहा है? इंग्लैंड कर रहा है। तो चारों तरफ से मतलब गिर गया ना, मतलब बर्लिन के अंदर एंटर कर गई पूरी। अब नाउ नाजी वर्ल्ड व्यू, अब इन्वेडेड पोलैंड रिसोर्सेज के नाजीज वर्ल्ड व्यू, पूरे युद्ध तो चल ही रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ साथ नाजी की जो आइडियोलॉजी थी वो कैसे स्प्रेड हो रही थी, इसके लिए उन्होंने 2 पॉलिसी आइडियोलॉजी अडॉप्ट की, रेशियल हायरार्की और सेकेंड लेब्रेंसरम। रेशियल हायरार्की का मतलब क्या होता है? उन्होंने सोसाइटी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नाजी वर्ल्ड व्यू, रेशियल हायरार्की एंड लेब्रेंसरम। नाजी वर्ल्ड व्यू,
रेशियल हायरार्की, जो रेशियल हायरार्की है ये आइडियाज कहाँ से, मतलब हर्बर्ट स्पेंसर से लिया मेनली। और लिबरलिज्म का मतलब होता है लिविंग स्पेस, यानी कि लिविंग स्पेस क्या, यानी कि न्यू टेरिटरीज को और एक्वायर किया जाए ताकि लोगों को और ज्यादा से ज्यादा रहने का मौका मिले। न्यू टेरिटरीज में रिसोर्सेज मिलेंगे, हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा एरिया में रहेंगे। रेशियल हायरार्की का मतलब उन्होंने सोसाइटी को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। डिजायरेबल में क्या आएंगे, मेनली नॉर्डिक, जर्मन, आर्यन, जो नेटिव लोग हैं वहीं के वो लोग आएंगे। और अनडिजायरेबल में मेनली जूस, पोलिश, रशियन पीपल विल कम। तो यानी कि नाजीज वर्ल्ड विल दैट आइडियोलॉजी, यानी कि अडॉप्टेड टू आइडियोलॉजी रेशियल हायरार्की एंड लिबरलिज्म। नाउ रेशियल यूटोपिया, what means Poland was divided into 2 main parts और Jews were given special treatment. Hitler never used the word of killing. For that purpose he was using the special treatment, final solution, evocations, disinfections. These are the words used by the Hitler to spread these ideas. Poland was divided and Jews were given special treatments and youth in Nazi Germany, यानी कि यूथ को क्या किया जाए, यहाँ पर सबसे पहले क्या आइडियोलॉजी टीच करवाई जाए, क्या पढ़ाया जाए उनको स्कूल्स में। जो स्कूल्स की बुक्स थी उनको क्या किया गया, री रिटर्न, दोबारा लिखा गया, मॉडिफाई करके किया गया। और मेनली क्या बताएगा ऊपर से, हिटलर को क्या बताया, हिटलर वो जो मसीहा, सेवियर, कंट्री को सेव करने वाला है, मसीहा है वो सब लोगों को, क्योंकि नाजी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो सब लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको क्या कर सकती है, सोल्व कर सकती है। एंड लास्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, कि वहां पर वीमेंस की वैल्यू क्या थी, दे कैन ओट टू बी ए गुड मदर्स। गुड मदर्स कैसे बन सकती थी, वो कितने मतलब कौन से बच्चों को प्रोड्यूस कर रही है, मेनली डिजायरेबल या अनडिजायरेबल। अगर डिजायरेबल को अगर वो बोर्न कर रही है, पैदा कर रही है, तो इसमें मतलब दे आर द गुड मदर, और अगर नहीं कर रही है तो मतलब दे गोट द पनिशमेंट। तो इसीलिए उन्होंने उसके लिए प्राइजेस भी रखे थे, अवार्ड। अगर 4 चिल्ड्रन हैं तो ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा, 6 है तो सिल्वर क्रोसिस दिया जाएगा, 8 है तो गोल्ड क्रोसिस, और अगर मोर देन 8 है तो क्या दिया जाएगा, ऑनर क्रोसिस। तो यानी कि दीज आर द मेन पॉइंट्स वी हैव डिस्कस। I hope students you understand in the proper way, but how will you understand that chapter in the proper? When you will read one line by one line from your textbook. So I request to all the students, please read the chapter carefully. If you are having any problem, so please watch the video again, because we have discussed all the things point wise, one by one. First World War, birth of Weimar Republic, Treaty of Versailles, and according to that we have done the question and answer also simultaneously. So I will give the question and answer today related to the NCERT book. Thank you.